we bring you a talk on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labour codes. This talk was part of a webinar organised by the Department of Justice. We have 4 codes, and this industrial relations code is one of the important code. Why this is one of the important code? Because it maintains peace and harmony. Because whenever any struck in the industry, so it will both way affect. It will affect the worker as well as it will affect the economy. So this industrial code is one of the important code who try to resolve all the grievances which are coming to this in the form of industrial dispute. So industrial dispute covers maximum aspects, the disputes between employer and employer, disputes between employer and employee, disputes between worker and worker, disputes between trade unions as well. So this particular aspect has been taken care of in the Industrial Relations Code. In this particular code, Industrial Relations Code, the first mechanism which have been given the statutory backing, it is the recognition of negotiating union and negotiating councils. Everywhere you will find the trade unions, everywhere you will find disputes. And there are some differences between the trade unions, workers as well as with the employer. So now this recognition will give you the platform where they can bargain on the workers' interest with the employer. So this platform will give you transparency, and in negotiating union, the election will be held by the employer, and then only the negotiating union will be recognized. So that is also one the democratic way. And negotiating councils, where it happens that you will not get the 51%, because the criteria for negotiating union is 51%. So sometimes it happens you will not get 51%. So then another concept has also devised. What negotiating council means? If you have get 20%, then you will have one member in the council as well. So likewise, we can have 5 members in that particular council. So by involving all trade unions in that particular industry, so that all demands of the workers can be put forth before the employer. So this is one of the important reforms which the government has done. First question comes into the mind of the worker that, okay, I got so many provisions in the various codes, where I will go? If some dispute is there, if some problem is there, then where I will go? So in this particular code, we have provision the grievance redressal committee, and it is mandatory if you are employing more than 20 workers, 20 or more than 20 workers, then you have to constitute this grievance redressal committee. And this grievance redressal committee itself have representative from the employers as well as representatives from the workers. So it is a body which will provide you the immediate redressal of your grievance, so that it should not convert into a big dispute. So this is first and foremost body, and it is compulsory for all industrial establishments to constitute. And more importantly, women also should be a part of this particular committee in proportion to their strength in the industrial establishment. So here the worker can apply, can represent himself for any of the grievances which requires address by the employer. जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ज़्यादा स्ट्रेंथ का मतलब इसलिए है कि वहाँ पे वर्कर्स हमारा बहुत ज़्यादा हम इनोसेंट है, उसको कोई भी मिसगाइड कर सकता है, ट्रेड यूनियंस या कोई भी मिसक्रिएंट व्यक्ति उसको मिसगाइड कर सकता है. सरकार एक आदेश देगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जिसमें 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर हैं, उसमें एक वर्क्स कमेटी भी बनाई जाएगी, और उस वर्क कमेटी का काम केवल और केवल क्या होगा कि पूरा इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मोनी को मेंटेन रखे, कॉमन इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को वो एड्रेस करे. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमेटी कि जो कि पीस एंड हार्मोनी को मेंटेन करने में हमारी मदद करेगी. और ये दोनों कमेटियाँ इन हाउस कमेटी हैं, इंडस्ट्री में ही इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर को बनानी है.
और वक्फ कमेटी और ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी भी, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको पूरी तरह से रेगुलेट करेगी। सारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में भी इसको बनाया जाना। अब अगर हम लोग वक्फ कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, अगर हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, तो हम लोग जा सकते हैं लेबर मशीनरी के पास। अब लेबर मशीनरी हमने इसमें कॉन्सिलेशन ऑफिसर पहले भी थे, अभी भी कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स हैं, लेकिन अभी हमने इनका जो काम है वो एक टाइम इनको दे दिया है 45 डेज कि 45 दिन में आप उस मुद्दे को सॉल्व करेंगे। अगर आप उसको 45 दिन में सॉल्व नहीं करते हैं तो जो भी पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, वर्कर है, वो फ्री है कि वो ट्राइब्यूनल में चला जा सकता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले वो ट्राइब्यूनल में सीधा नहीं जा सकता था, उसको सरकार से रेफर कराना पड़ता था अपना मैटर, वो भी उस केस में जिस केस में फेल्योर हो जाए सेटलमेंट। अब कॉन्सिलर ऑफिसर क्या करता है, एक मीडिएटिंग ऑफिसर है खासतौर से, क्योंकि सरकार ने आपको सुविधा प्रदान की गई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वर्कर के चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जितनी मशीनरी आप इसमें पाएंगे चारों कोड के अंदर, इसमें वर्कर को कोई पैसा नहीं देना है और वो सीधे जा सकता है। कुछ मैटर्स पे वो ट्रेड यूनियन के थ्रू जा सकता है, लेकिन कुछ मैटर्स जो डिसमिसल, रिटेंचमेंट, इस टर्मिनेशन से संबंधित हैं, उसमें ट्रेड यूनियन की भी आवश्यकता नहीं है, वो सीधे जा सकता है। सो कुछ मुद्दे हैं जो ट्रेड यूनियन के मार्फत होंगे, क्योंकि वो कॉमन इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स का काम होगा, जो हमारी लेबर मशीनरी का पार्ट है, थ्रू आउट इंडिया में अवेलेबल है, सेंट्रल स्फेयर में, और स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरीके के कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स बनाएगी। Introducing the Delhi Law Citizen mobile app for the Indian citizens. This app has been specially developed for you as a citizen by the Department of Justice, Government of India, in collaboration with CSC. Through this mobile app, you as an applicant can get free legal advice and assistance from professional panel lawyers of the country in all kinds of disputed matters. Download the Delhi Law Citizen mobile app today. उसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स पे। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स तो पहले हम लोग कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे पास, लेकिन इन कानूनों में जो बदलाव किया गया है वो ये है कि एक तो कुछ मुद्दों में जो हमारा वर्कर है वो सीधा ट्राइब्यूनल्स में भी जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, रिट्रेंचमेंट के केस में, डिसमिसल के केस में और टर्मिनेशन के केस में, जो आपके जो पूरा का पूरा इनकम आपका लॉस हो गया इन सब एक्शंस की वजह से एम्प्लॉयर के, वो सीधा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में भी अप्रोच कर सकता है। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स को भी कोशिश किया जा रहा है कि उसको भी हम लोग अच्छा स्ट्रेंथन करें, और इस कानून के माध्यम से हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को बना दिया है 2 मेंबर ट्राइब्यूनल। पहले केवल 1 मेंबर ट्राइब्यूनल था, अब हमने बना दिया है 2 मेंबर ट्राइब्यूनल, और इसके अंदर एक जुडिशियल मेंबर होगा और जिसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। तो इसमें जो मामले रखे जाएंगे, अगर आपका कंसलेशन ऑफिसर्स के थ्रू 45 दिन में कोई भी नहीं हो पाया है सॉल्यूशन, तो आप ट्राइब्यूनल में सीधा चले जाएंगे। अगर कंसलेशन ऑफिसर्स ने कोशिश किया लेकिन सेटलमेंट एम्प्लॉयर के बीच में और वर्कर के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पाया है, तो भी जो भी एग्री पार्टी है दोनों में से कोई भी ट्राइब्यूनल में चला जाए। सो ये प्रावधान हमने ट्राइब्यूनल्स के लिए किए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रावधान है, और इसमें 2 मेंबर्स बनाने के उपरांत हमें बहुत सुविधा मिलने वाली है। हमारे जो केसेस लंबित पड़े हैं उनको भी हम लोग शीघ्र निपटारा किया जा सकता है। और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बनाने का है, वो तो पहले से भी हमारा चल रहा है, लेकिन इसमें भी प्रावधान किया गया है सेम, और इसमें नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में भी सेम प्रोविजंस हैं, जिसके अंदर 2 मेंबर ट्राइब्यूनल है ये भी, इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा और जुडिशियल मेंबर होगा, लेकिन इसमें मुद्दे वो रखे जाएंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे होंगे, और या फिर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर उसमें अफेक्ट होंगे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, वो मुद्दे इसमें, ये नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में वो मुद्दे रेफरेंस के थ्रू ही जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे वॉलंटियर आर्बिट्रेशन की भी इसमें प्रावधान किया गया है। वॉलंटियर आर्बिट्रेशन क्या है भाई, आप नहीं जाना चाहते लेबर मशीनरी के पास, आप नहीं जाना चाहते ट्राइब्यूनल के पास, आप ठीक है एम्प्लॉयर आप बैठिए, वर्कर बैठिए, या ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर बैठिए, भाई ठीक है हम आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं
वो जैसे कहेगा हम उसकी बात मान लेंगे। तो ये भी एक बहुत ही जो है ट्रेडिशनल तरीका जो रहा है अभी तक का, सक्सेसफुल ट्रेडिशनल तरीका रहा है कि जहाँ नहीं थर्ड पार्टी को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो एक न्यूट्रल आदमी को आप लेंगे और उससे अपना फैसला करा लेंगे। अब मैं बात करूंगा कोड ऑन वेजेस की, क्योंकि कोड ऑन वेजेस में भी कुछ अथॉरिटीज बनाई गई हैं। कुछ मुद्दे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के माध्यम से सीधा सीधा IR कोड में आ जाते हैं, उसका जिक्र मैंने आपको कर दिया। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सीधा सीधा भाई टाइम पे पेमेंट नहीं मिला, या कम पेमेंट मिल रहा है मिनिमम वेज से, या मैटरनिटी बेनिफिट, या कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो इस पर्टिकुलर कोड में दिए गए हैं, उनको इस पर्टिकुलर कोड में ही प्रावधान किया गया है। कुछ अथॉरिटीज बनाई गई हैं, वो अथॉरिटीज को सुनेंगे। अब इसमें जैसे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया, एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी बनेगा। तो ये बोर्ड जो है मुख्यतः केंद्र सरकार को एडवाइस करेंगे और राज्य सरकारों को एडवाइस करेंगे कि मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्या हमारा नीति होना चाहिए, क्या हमारा स्कीम्स होना चाहिए। इस पे वो मोटे तौर पे केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को अपनी सलाह दें। अब इसमें जो मुख्य बात मुझे बतानी है, क्लेम्स अथॉरिटी इसमें दिया गया है। क्लेम्स अथॉरिटी क्या देखेगा? आपका डिलेड वेजेस हुआ है, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस हुआ है, लेस देन मिनिमम वेजेस हुआ है, या बोनस के डिस्प्यूट है। ये स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स क्लेम्स अथॉरिटी जो सरकार नोटिफाई कर रही है वो इसको सुन लेगा। इसी तरह अगर एम्प्लॉयर या वर्कर सेटिस्फाई नहीं है क्लेम्स अथॉरिटी से, तो अपेलेट अथॉरिटी का भी प्रावधान किया गया है। अपेलेट अथॉरिटी में भी जाके वो सुना जा सकता है उसका। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो अभी आपको सारी चीजें बताई, ESI और PF और मैटरनिटी बेनिफिट्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो मेजर इसके अंदर प्रावधान किया गया है, इसको कवर किया गया है इसमें। सो आपका 80% से ज्यादा जो वर्क फोर्स है, इसके द्वारा उसको वेलफेयर स्कीम का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। ये इसका एक मैकेनिज्म जो है बनाया गया है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में कि इससे रिलेटेड जो चीजें होंगी उसको कैसे सुना जाएगा। इसमें भी वही प्रावधान है, नेशनल लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, स्टेट लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, EPF और ESIC को इसमें कंटिन्यू रखा गया है। और जो ये सारे चीजें प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स और वेलफेयर स्कीम्स को गवर्न करेंगे। तो इसमें भी 2 अथॉरिटीज बनाई गई हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज और अपेलेट अथॉरिटीज, जो ग्रेचुइटी से संबंधित समस्याओं को सुनेंगी और सुलझाएंगी। इसमें भी सेम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का सिमिलर प्रोविजन है। और अपेलेट अथॉरिटी भी इसमें अलग से दिया गया है कि जो बेनिफिट्स होंगे वो अपेलेट अथॉरिटी, अगर मान लीजिए आप सेटिस्फाई नहीं है इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन रिपोर्ट से या किसी से, तो आप अपेलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं। ये OSH कोड एक इम्पोर्टेंट कोड है कि जो आपका जो वर्क प्लेस है, बेसिकली ये आपको एक प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन देता है कि आपका वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपने किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, वर्कर के हजार्ड्स को आप कैसे कम कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर कोड उस बारे में बात करता है। तो इसमें भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दिया गया है। नेशनल लेवल का बोर्ड बनेगा, एडवाइजरी बोर्ड, उसी तरह स्टेट लेवल का भी एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है, सेफ्टी कमेटी एक बनेगी उन ऑर्गेनाइजेशन में जो 500 से ज्यादा वर्कर्स हैं जहाँ पे, और माइंस के लिए अलग से सेफ्टी कमेटी बनेगी, क्योंकि माइंस में अलग तरह का हैजार्ड्स है और बाकी इंडस्ट्री में अलग तरह का हैजार्ड्स है। तो दोनों के लिए अलग अलग तरह की कमेटीज का प्रावधान किया गया है, जो वर्कर्स जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है उस एनवायरनमेंट को किस प्रकार से सुरक्षित बनाया जाए। और इसमें डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज और अपेलेट अथॉरिटीज का सिमिलर प्रोविजन है, जैसे आप पिछले कानूनों में देख रहे थे। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का भी सेम ही इसमें प्रोविजन है। मतलब आप देखेंगे कि बाकी 3 कोड में और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो एक बड़ा एम्बिट है, और बाकी 3 कोड में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के जरिए आप प्रिवेंटिव चीजों को कर लेंगे इनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के हिसाब से। सर, थैंक यू सो मच।